تم نے کیا گیم کھیلی ہے؟ اسد آتے ہوئے کہنے لگا۔ مجھے پتا تھا ہاں ہی ہونی ہے۔ چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تو اب کب کرنا ہے نکاح؟ اسد پوچھنے لگا۔ پرسوں۔ مائز مختصر سا جواب دینے لگا۔ پرسوں خیریت تو ہے؟ بنا بنایا کھیل بگاڑو گے تم، کلر کو فوراً منع کر دے گا۔ اسد حیرت سے کہنے لگا، تم سے پوچھا ہے کسی نے؟ نہیں۔ وہ سد نے کہا ہے اس پر ڈالے۔ پوچھنے لگا۔ اسد خاموش ہو گیا۔ بتا دینا اسے، مائز کہتے ساتھ چلا گیا اور اسد اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ظاہر نے سب کو، مبین کی فیملی اور تہران کو بلایا تھا ضروری بات کرنے کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انمول فوراً کہنے لگی۔ کیا؟ ظاہر پوچھنے لگا۔ آپ کیسے اتنی جلدی مناہل کی شادی کر سکتے ہیں؟ لڑکے کا نہ کچھ عطا۔ انمول اسے کہنے لگی۔ ہاں ظاہر، انمول بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اتنی جلدی کیوں؟ فرح فوراً بولی، میں اپنی بیٹی کے لیے غلط نہیں سوچوں گا۔ مجھے وہ لڑکا اپنی بیٹی کے لیے اچھا لگا تو حامی بھر لی۔ ظاہر نے بولا، بتانے کی بھی کہاں ضرورت تھی، رخصت کر آتے پھر بتاتے مجھے۔ انمول غصے سے کہتے ساتھ اندر چلی گئی۔ بھائی بھابھی کو بھی ناراض کر دیا، ان سے تو پوچھ لیتا۔ تہران کہنے لگا۔ ظاہر خاموش رہا۔ اب کرنی کب ہے شادی؟ مبین پوچھنے لگا۔ وہ لڑکا بتائے گا، ظاہر نے بتایا۔ اچھا جو بھی کرو سب ٹھیک ہو، مبین بس یہی بول سکا۔ انمول کمرے میں بیٹھی تھی۔ یار غصے ہونے کی بات ہی نہیں ہے، تمہاری بیٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ظاہر اسے کہنے لگا۔ ہاں آپ دونوں باپ بیٹی نے تو مجھے ایک سائڈ پر کر دیا، آپ لوگوں نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ انمول خفگی سے کہنے لگی، اف کچھ نہیں ہے ایسا جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ انمول ایسا رشتہ پھر نہیں ملنا، مجھے وہ لڑکا کافی اچھا لگا ہے، ظاہر نے اسے سمجھانے لگا۔ انمول خاموش ہو گئی۔ تبھی ظاہر کا فون آیا۔ ہاں بولو۔ ظاہر بولا، سر مائز پرسوں کا نکاح رکھوانے کا کہہ رہا ہے، سد نے بتایا۔ کیا پرسوں کا؟ ٹھیک ہے، ظاہر مانتے ہوئے بولا اور سد کو ایک اور دھچکا لگا۔ ظاہر نے کال کاٹ کر دی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے ظاہر؟ اتنی جلدی؟ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی غلط کچھ کیا ہے؟ نہیں نا، مجھ پر یقین رکھو، مائز اسے بولا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا نکاح اسی دن ہوگا، مائز اسد سے کہنے لگا۔ سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے، اسد پریشانی سے بولا۔ آگے آئے گی، مائز اسے کہنے لگا، جس پر اسد خاموش ہو گیا۔ تیاری پکڑ لو پرسوں کی۔ پھر اسد اسے کہنے لگا۔ مائز ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کب کی کر کے رکھی ہے، مائز ہنستے ہوئے بتانے لگا۔ اسد اسے دیکھنے لگا۔ تو کچھ غلط تو نہیں کرنے والا نا؟ وہ لڑکی بہت معصوم ہے مائز، اسد اس کے چہرے کے تاثر دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ میرا اور اس کے بیچ کا معاملہ، تم بیچ میں نہ آؤ، مائز سرد لہجے میں بولا، جس پر اسد خاموش ہو گیا۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں لال جوڑے میں بیٹھی تھی۔ ظاہر کمرے میں آیا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، ظاہر اسے دیکھتے ہوئے نیم آنکھوں سے کہنے لگا۔ مناہل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ڈیڈ آئی مس یو، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ آئی مس یو ٹو، لیکن ایک دن تو سب بیٹیوں نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ وہ اسے گلے سے لگایا۔ مجھے نہیں جانا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ایسے نہیں بولتے، مولوی صاحب آنے والے ہیں، میں دیکھ لوں ذرا، آپ بیٹھو یہاں، وہ کہتے ساتھ چلا گیا۔ مناہل اداسی سے بیٹھ گئی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، انمول اسے گلے لگائے بولی۔ وہ عورت ہوئے ثابت میں سر ہلا گئی۔ وہ بیڈ پر لال جوڑے میں بیٹھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور مائز ملک اندر داخل ہوا۔ سامنے اس معصوم چہرے کو لال رنگ کے جوڑے میں بیٹھا دیکھ مائز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کہا تھا نا تم میری بنو گی، صرف مائز ملک کی۔ مائز اس کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا۔ مناہل کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے ڈرے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس وقت تم بالکل کوئی معصوم سی پری لگ رہی ہو۔ وہ اس کے اور قریب ہوتا اس کا ہاتھ تھامے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ مناہل نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ تمہیں دیکھتی ہی مائز ملک کو پیار ہو گیا۔ سیاہ رنگ میں تمہارا سفید بہت پیارا سفید
चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। तुमसे इश्क करने लगा हूँ, वो कहते साथ उसके माथे पर लब रख गया। मनायल के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा। मुझे चेंज करना है, वो डरते घबराते कांप कर बोली। इसकी बात सुनकर सामने बैठे शख्स की आंखें सुर्ख हुई और वो उसे सुर्ख आंखों से देखने लगा। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मनाहिल डर कर रह गई। वो उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लग गया। मनाहिल हद से डर गई। ओके, तुम करो, वो सर्द लहजा इख्तियार किए कहने लगा। मनाहिल घबराते हुए उठी और अपना ड्रेस संभालती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कंट्रोल माइज, कंट्रोल माइज अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो सादा सी शलवार कमीज में मुबलिस बालों को जूड़े की शक्ल में दिए, सर पर दुपट्टा किए माइज के सामने खड़ी थी। माइज की नज़र उस पर गई तो दिल ने एक बीट मिस की। वो उसे मुस्कुरा कर देखने लग गया। जान नमाज किधर है, वो हिचकिचाते हुए उससे पूछने लगी। माइज ने इसकी तरफ देखा और फिर कबर्ड से जान नमाज निकाल कर दी। शुक्रिया, वो मुस्कुराते हुए कहते साथ थामी नमाज बिछाकर नफल पढ़ने लग गई। वो नफल अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए बहुत देर तक खुदा से गुफ्तगू करती रही। इसी दौरान उसे खुद पर किसी की वहशत भरी नजरें महसूस हो रही थी, मगर वो खुदा से गुफ्तगू करने में मसरूफ रही। इसने नमाज अदा करके नमाज लपेट कर माइज को थमा दी। माइज ने वो थामी साइड पर रख दी। तुम्हारे चेहरे पर इतना नूर कैसे है, इतनी खूबसूरत कैसे? वो उसके चेहरे का जायजा लेकर उसे देखते हुए पूछने लगा। पता नहीं, वो हिचकिचाते हुए नजरें चुरा कर कहने लगी। तुम्हें देखकर सामने वाले को सुकून सा मिलता है, या शायद सिर्फ मुझे ही? तुम्हें देखकर सामने वाले को सुकून सा मिलता है, या शायद सिर्फ मुझे ही? वो उसके करीब आते हुए बोला। मनाहिल की हार्ट बीट मामूल से तेज चलने लगी। वो इसके करीब हुआ, इसका चेहरा उठाया, इसके माथे पर लब रखे। मनाहिल का दिल बहुत तेजी से घबराने लगा। वो अपने हाथों को मसलने लगी। माइज इसके माथे से होता इसके नाक पर झुका और मनाहिल को लगा इसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। मनाहिल एक झटके से पीछे होकर चेहरा दूसरी तरफ कर गई। वो मैं अभी तैयार नहीं हूँ इस रिश्ते को कबूल करने के लिए, बहुत अचानक हुआ है सब कुछ। वो हाथ मसलते हुए घबराते हुए ये लफ्ज़ अदा करने लगी। माइज उससे देखने लगा। मैं जब जब तुम्हारे करीब आऊँगा तुम आने दोगी, क्योंकि मैं अब हक रखता हूँ, याद रखना। माइज उसका रुख अपनी तरफ किए इसकी कलाई को मजबूत गिरफ्त में थामे उस पर नजरें जमाए कहने लगा। मनाइल की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वो बहुत गुस्से से देख रहा था। वो इसकी गिरफ्त भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो उसे कहते साथ वहाँ से चला गया। मनाहिल नीम आंखों से उसे जाता हुआ देखने लगी। पूरी रात सुकून से नहीं सो सकी थी। सुबह फजर के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। माइज पूरी रात कमरे में नहीं आया था। हल्की हल्की रोशनी हुई थी, तभी वो कमरे में दाखिल हुआ, मगर मनाहिल गहरी नींद सो रही थी। माइज ने उसे देखा, उसके पास घुटनों के बल बैठा। सॉरी, कल ज़्यादा रूड होकर चिल्लाया। मुझे समझना चाहिए था। तुम्हें क्या करूं, इस गुस्से पर काबू नहीं कर सकता। वो मनाहिल को देखते हुए कहने लगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं गुस्सा कम करूं, वो कहते साथ उठा। उसके चेहरे पर आए बाल पीछे की जानिब करता इसके माथे पर अपने लब रखकर उससे दूर हो गया। अपने जिस्म पर किसी चीज़ का लम्स महसूस करके मनाहिल हिली और मुंह दूसरी तरफ करके दोबारा सो गई। घड़ी इस वक्त 9 बजा रही थी, तभी मनाहिल की आंख खुली। वो उठकर बैठी और कमरे में नज़र घुमाई, मगर माइज कहीं नहीं था। वो बालों को हाथ की मदद से ठीक करके बेड क्रॉन से टेक लगा गई। कुछ देर बाद माइज हाथ में डिश थामे कमरे में दाखिल हुआ। मनाहिल की नज़र उस पर गई तो ठीक होकर बैठी और दुपट्टा शोल्डर पर डाला। गुड मॉर्निंग मिसेज, वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। मनाहिल नजरें झुकाए खामोश रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, माइज उसे देखते हुए कहने लगा। मनाहिल उठी और बगैर जवाब दिए बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी माइज ने इसकी कलाई पकड़ उसे रोका और झटके से अपनी तरफ खींचा। कल से जब मैं गुड मॉर्निंग कहूँ तो मुझे बदले में जवाब चाहिए। मुझे नज़रअंदाज करने की गलती हरगिज़ मत करना। वो उसके चेहरे पर हाथ फेर कर गर्दन तक लाते हुए लफ्ज़ चबा चबा कर कहने लगा। मनाहिल ने थूक निकली। वो उसे खुद से खौफजदा रहने पर मजबूर कर रहा था, समझी। वो उस पर वहशत भरी नजरें गाड़े पूछने लगा। जी। वो नीम आंखों से बामुश्किल जवाब देने गुड गर्ल, वो कहते इसकी कलाई छोड़ गया। वो फौरन बाथरूम की तरफ भाग गई। आंखों में नमी थी। वो बाथरूम में अपना जब्त किए आंसू निकालते बहुत ज्यादा रोई, फिर फ्रेश होकर बाहर आई।
और मन ही नाश्ता कर लो। माहिर अब बिल्कुल नॉर्मल था। मनाहिल उसे देखने लग गई। क्या है शख्स, पल में कुछ, पल में तो पल में कुछ, ये सोचते हुए वो डरते हुए छोटे छोटे कदम उठाकर माहिर के पास आई। माहिर ने उसे नाश्ता सर्व किया जो उसने बामुश्किल थोड़ा सा खाया और रख दिया। जूस पियोगी, वो पूछने लगा। मनाहिल ने हाँ में सर हिला दिया। माहिर ने उसे जूस दिया जिस पर वो खामोशी से पी गई। वो किसी जरूरी काम से घर से चला गया था और मनाहिल को अपना ख्याल करने की तनबीह करके गया था। क्या है वो शख्स, क्या मैं रह सकूंगी इसके साथ? मनाहिल सोचते हुए कहने लगी। इतना गुस्सा हो जाता है छोटी से छोटी बात पर। मनाहिल उदासी से बालकनी में खड़ी सोच रही थी, तभी इसका फोन बजा। वो फोन कॉल अटेंड करने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। जी डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, मॉम को भी कह दीजिएगा, वो बताने लगी। ठीक है मेरा बच्चा, ज़ाहिर प्यार से कहते साथ फोन रखा और वो वहीं बेड पर बैठकर आगे की जिंदगी का सोचने लगी। वो इस वक्त भीगी हुई आंखों के साथ नमाज अदा कर रही थी। नमाज पढ़ने के बाद उसने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह ताला जो भी किया है मेरे हक में बेहतर ही होगा, लेकिन जिस इंसान से मेरा तलक जोड़ा इसके साथ मुझे रहना और सब्र करना भी सिखा देना। मैं आपकी रजा में खुश हूँ, लेकिन सब्र भी आपने देना है मुझे। वो रोते खुदा से दुआ करती चेहरे पर हाथ फेर कर उठी और जान-ए-नमाज को उसकी जगह पर रखकर वो दुपट्टा सर से हटा ड्रेसिंग के सामने आकर बालों को सुलझाते हुए माहिर के बारे में सोचने लगी। मन ही वो जो अपनी सोचों में गुम थी। माहिर की आवाज से मुड़कर उसे देखा। उसकी नीम आंखों को देखकर माहिर परेशान हुआ। सब ठीक है ना मन ही, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? वो इसकी जानिब बढ़ते हुए इसके चेहरे को हाथों में लिए फिक्रमंदी से पूछने लगा। जी वो सब ठीक है, ये बस ऐसी आंखों में साबन चला गया। वो झूठ बोलते हुए नजरें झुका गई। इधर बैठो, माहिर कहते साथ उसे बेड पर बिठाता उसका दुपट्टा थामे उसकी आंख पर रखकर फूंक मारने लगा। वो उसे देख रही थी। इससे जलन नहीं होगी, माहिर उसे देखते हुए बोला और 5 मिनट यही अमल करता रहा। मनाहिल खामोश रही। अब कैसा फील कर रही हो? माहिर उसे देखते हुए पूछने लगा। जी बेहतर है, वो मुख्तसर सा बोली। गुड। माहिर कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मनाहिल उसे जाता देखने लगी। भूख लगी है? वो अंदर आता उससे पूछने लगा। आप कहाँ थे? वो इसका सवाल नजरअंदाज करती अपना पूछने लगी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, वो सख्त लहजे में उसे देखते हुए कहने लगा। मनाहिल ने उसे देखा। बताओ, बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ, वो तब का कहने लगा। मनाहिल साबत में सर हिला गई। तुम बैठो, मैं आया। माहिर कहते साथ जाने लगा। क्या मुझे ये तक पूछने का हक नहीं आप कहाँ थे कहाँ नहीं? वो खफकी से बोली। माहिर उसे मुड़कर देखने लगा। हम बाद में बात करते हैं इस बारे में, वो कहते साथ बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो डिश थामे ऊपर आया। मनाहिल बेड पर बैठी थी। उसने इसके सामने डिश रखी। मनाहिल खामोश बैठी थी। खाना शुरू करो, वो उसे देखते हुए बोला। मनाहिल छोटा सा निवाला तोड़कर मुंह बनाए खाने लगी। 2-3 निवाले खाने के बाद वो रुक गई। मेरी बस हो गई, वो धीमे लहजे में कहते साथ उठकर जाने लगी। माहिर मलिक ने उसका हाथ पकड़कर रोका। मैंने तुम्हें उठने का नहीं बोला, वो सख्त सजाए सद लहजे में बोला। मनाहिल की आंखों में नमी आ गई। बैठो और खाओ, वो गुस्से से कहते साथ उसे बेड पर बिठाता बोला। मुझे भूख नहीं, वो नीम आंखों के साथ कहने लगी। मैंने कुछ नहीं सुनना, मैं कह रहा हूँ खाओ तो खाओ, माहिर उसे बोला। मनाहिल मजबूरन खाने लग गई। वो अपने खुफिया कमरे में आए पंच बैग पर बगैर ग्लव्स पहने अपने हाथों से पंच करने में मसरूफ था। गर्दन और हाथों की रगें फूल चुकी थी। चेहरा सख्त आंसू से सजा हुआ था। क्यों कर रहा हूँ मैं, आखिर क्यों? वो खुद से सवाल करने लगा। मनाहिल कमरे में बैठी बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मैं कैसे रहूंगी? गुस्सा करते हैं कभी, इतनी केयर करते हैं, वो रोते हुए कहने लगी। क्या करूं मैं? वो सोच कर हलकान होती जा रही थी। कुछ देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। माहिर को लगा था वो सो गई होगी, मगर वो तो जाग रही थी। मनाहिल की नजर उस पर गई और अचानक उसके हाथ से खून निकलने वाली जगह पर गई। हाँ, क्या हुआ है आपको? ये खून कैसा? वो फिक्रमंदा लहजे में पूछने लगी। ये तो हल्का सा ठीक हो जाएगा, वो लापरवाह सा बोला। नहीं, ये छोटा सा नहीं, ये जख्म गहरा हो जाए। प्लीज आप यहाँ पर बैठे प्लीज, मनाहिल कहते साथ उसकी तरफ बढ़ी और उसे बेड पर बिठाने लगी। माहिर को मजबूरन बैठना पड़ा। वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। फर्स्ट ड्रॉर
माइज ने उसे बताया, जिस पर वो उस ड्रॉर की तरफ बढ़ी और बॉक्स निकाल कर इसके पास आकर घुटनों के बल बैठी। कॉटन से इसका खून रोका, उसके बाद इस पर दवाई लगाई और पट्टी पट्टी बांधी। वो बहुत तरीके से ये सारे काम सर अंजाम दे रही थी। माइज उसे पल के झिपकाए देखने में मसरूफ था। हो गया, वो कहते साथ उठकर जाने लगी। तभी माइज ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। तुम्हें मेरी फिक्र है। वो इसके बालों को कान के पीछे किए उसकी कमर पर हाथ डाले गंभीर लहजे में पूछने लगा। मनाहिल घबरा गई। सिर्फ आपकी नहीं, मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। मनाहिल नजरें झुकाए बताने लगी। माइज के चेहरे पर अचानक सख्ती दर आई। मैं किसी नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ। वह गिरफ्त मजबूत करता सख्त लहजे में बोला। मनाहिल को दर्द होने लगा। मुझे दर्द हो रहा है। मनाहिल दर्द से चीखते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता। आई एम रियली सॉरी। वो फौरन अपना बाजू उसकी कमर से हटाए कहने लगा। मनाहिल उसे देखने लग गई। वो शख्स क्या था? कभी कुछ तो कभी कुछ, और इट्स ओके। वो नीम आंखों से देखते हुए बोली, दर्द ज्यादा हुआ है। आई एम सॉरी, मैं पागल हूँ, गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ। वो खुद पर गुस्सा करते हुए चिल्लाया। आई एम सॉरी, प्लीज, गलती से हुआ, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। वो कहते साथ मनाहिल को सीने से लगा गया और मनाहिल घबरा कर रह गई। वो शख्स सच में पागल था। उसे तकलीफ में देख भी नहीं सकता और तकलीफ देता भी था। न जाने कितनी देर वो उसे यूं ही लगाए खड़ा रहा। वो सोची की थी। माइज उठकर इसके पास आया। मैं तुम पर सख्ती सिर्फ एक शख्स की वजह से करता हूँ, तुम्हारे डैड की वजह से। वो उसे देखते हुए कहने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें सबसे दूर करके सिर्फ अपने करीब कर लूँ, सिर्फ अपने। माइज कहते साथ उसके माथे पर लब रखे कमरे से बाहर चला गया। मनाहिल गहरी नींद में वैसी ही सोती रही। सुबह जब वो उठी तो कमरे में कोई नहीं था। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर वापस आई तो टेबल पर नाश्ता मौजूद था और वो काउच पर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। मनाहिल खामोशी से आकर बैठ गई। दोनों ने नाश्ता करना स्टार्ट। इस सब के दौरान दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कहीं घूमने चले? वो मनाहिल पर नजरें जमाए कहने लगा। किधर? मनाहिल पूछने लगी। कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाए, हम दोनों साथ वक्त भी गुजार लेंगे। वो उसे बताने लगा, जिस पर मनाहिल साहबत में सर हिला गई। जैसा आपको ठीक लगे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, ओके। वो मुख्तसर सा कहते साथ डिशें उठाकर जाने लगा। मैं रख देती हूँ। मनाहिल कहते साथ उठी और डिशेस इसके हाथ से कहती नीचे की तरफ बढ़ गई। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सॉरी जो अब तक तुम पर गुस्सा करता आया हूँ। माइज उसे कहने लगा। मनाहिल ने उसकी तरफ देखा। लेकिन क्यों? वो पूछने लगी। माइज ने हाथ थामा और उसे नीचे की तरफ ले गया। वो जीरे अबूर करते साइड पर बने एक कमरे की तरफ बढ़ा। वो इस कमरे में दाखिल हुए सामने एक बुजुर्ग औरत को बेहोश लेटे पाया। वो परेशानी से उसे देखने लगी। इस वजह से वो सामने लेटी हुई औरत पर इशारा करते हुए मनाहिल को बताने लगा। मनाहिल ने इसकी तरफ देखा। मतलब मनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रहा है। माइज ने उसे देखा। मेरे डैड यही रहते थे। मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडीज के लिए गया हुआ था। मॉम ने मुझे अकेले नहीं जाने दिया, वो भी साथ चल दी। हम दोनों 10 साल बाद वापस मलेशिया आ रहे थे। मैं बहुत खुश था डैड से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ आकर पता चला डैड का मर्डर हो गया है और इस गम की वजह से मॉम सदमे में चली गई और मैं बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। वो मनाहिल को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सब बताने लगा। ये सब सुनते मनाहिल की आंखों में नमी आ गई। मर्डर किसने किया है पता चला है? मनाहिल उसे देखते हुए पूछने लगी। कोशिश कर रहा हूँ, लग जाएगा पता। माइज कहने लगा। मनाहिल चलते हुए इसके पास आकर इसके करीब बैठी और उसे देखने लगी। ये जल्द ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। मनाहिल उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर सिर्फ सर ही हिला इसका। मनाहिल नीम आंखों से माइज को देखने लगी। कितनी तकलीफ में था वो और वो समझ ही नहीं सकी। सॉरी, आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। वो उसे देखते हुए कहने लगी। नहीं, गुस्सा तो मैं होता था जब भी मम्मा को देख आता परेशान हो जाता, बस इसलिए। माइज उसे कहने लगा, जिस पर वो खामोश हो गई। हम आंटी को इसी हालत में छोड़कर जाएंगे क्या? मनाहिल उसे देखते हुए पूछने लगी। केयर टेकर है इनके पास, वो ख्याल रखेगी, हम आ ही जाएंगे। माइज बताने लगा, जिस पर वो खामोश हो गई। तभी माइज का फोन बजा। वो उसे मुस्कुराकर देखते साथ फोन उठाने की तरफ
ज़ाहिर कॉलिंग लिखा आ रहा था। मनाहिल बैल्कनी से बाहर की जानिब देखने में मसरूफ़ खड़ी थी। नहीं, वो नीचे है, तो जैसे ही वो ऊपर आती है मैं कॉल बैक करता हूँ। वो नज़रें मनाहिल पर मुस्कर किए ज़ाहिर को जवाब देने लगा, जिस पर वो सिर्फ ओके कह सका और फ़ोन रख दिया। वो नमाज अदा करने में मसरूफ़ थी। वो बेड क्रॉन के साथ टेक लगाए उसे यकटक देखने में मसरूफ़ था। नमाज पढ़ते वक्त और भी खूबसूरत लगती हो। मनाहिल ने जैसी सलाम फेरा, माइज ने उसे देखते ही फौरन ये लफ्ज़ अदा किया। वो ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुराई और दुआ मांगने में मसरूफ़ हो गई। वो न जाने कब से दुआ मांगे जा रही थी। इतनी देर से क्या मांग रही थी? माइज इसके पास आता पूछने लगा, बहुत कुछ, वो मुख्तसर सा जवाब दे गई। फिर भी मसलन, माइज ने वहीं फिर से पूछा। मनाहिल ने उसे मुस्कुरा कर देखा। दुआ बताई नहीं जाती वरना कबूल नहीं होती, वो तो इत्मीनान से कहते साथ बेड की तरफ बढ़ गई। माइज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम्हें ये सारी किसने सिखाई है? वो इसके पास बेड पर आता इससे एक और सवाल करने लगा। मेरी मामा। मनाहिल मुख्तसर से जवाब देने लगी, जिस पर वो खामोश हो गया। मैं बेचारे पर ऐसे ही नाराज हो रही थी जो गुनाह कर कह मॉम की वजह ये कह रही थी मॉम की वजह से परेशान है अपनी। मनाहिल अफसोसी से होकर कहने लगी, मनी। तभी माइज कमरे में दाखिल होते साथ उसे पुकारने लगा। जी। मनाहिल इसके पुकारने पर फौरन बेड से उठती पूछने लगी, जिस पर माइज की नजरें उस पर गई। कल हम लोग निकल रहे हैं अमेरिका के लिए, तैयार रहना, वो उसे बताने लगा। मनाहिल को परेशानी हुई। इतनी जल्दी मॉम डैड से कैसे मिलूंगी? मनाहिल उदासी से उसे देखने लगी। माइज ने इसकी तरफ देखा। उसे हद से ज्यादा इस वक्त ज़ाहिर का जिक्र सुनकर गुस्सा आया, मगर जब्त कर गया। तुम्हारे डैड से मेरी बात हो गई है, वो कह रहे थे कोई बात नहीं, आकर मिल लेना। अब और कुछ नहीं कहोगी तुम? वो उसे थोड़ा सर्द लहजे में कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मनाहिल खामोशी से बेड पर बैठ गई। मॉम डैड को मेरी याद नहीं आती होगी, वो उदासी से सोचने लगी और बेड क्रॉन के साथ टेक लगा गई। सुबह वो दोनों जाने के लिए तैयार थे। मनाहिल वाइट फ्रॉक पहने, साथ में जीन्स पहने, सर पर हिजाब किए, चेहरे पर मेकअप नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। चले ना? माइज बाथरूम से बाहर निकल कर पूछने लगा। मनाहिल ने अपना रुख उसकी तरफ किया। जी। वो मुड़कर कहने लगी। माइज की नज़र उस पर गई, वहीं रुक सी गई। चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने जगह ली। वो आगे बढ़ने लगी जब माइज ने उसका हाथ थामकर करीब किया। मनाहिल की हार्ट बीट मिस हुई। पहले खुद को सुकून से देखने तो दो। वो उसके चेहरे पर हाथ रखे, अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब किए, बहुत मोहब्बत से कहने लगा। मनाहिल इसकी गर्म सांसें और इसमें से आती की खुशबू से बेबस हो रही थी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुहाल लगा। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। माइज ने इसकी परेशानी पर लब रखे वो फौरन आंखें बंद कर गई। माइज की नज़र उस पर गई, चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। वो दोनों इस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद थे। मनाहिल का हाथ थामे वो फ्लाइट के अंदर दाखिल हुआ। मनाहिल इसकी साथ साथ चली। इससे पहले जहाँ बैठी हो जहाज में, वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर मनाहिल ने नफी में सर हिला दिया, क्योंकि आंखें मिलाना तो इसके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया था। डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना, वो इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जिस पर मनाहिल साबत में सर हिला गई। वो मुस्कुरा दिया। मनाहिल गहरी नींद सो रही थी। माइज की नजरें बार बार उस पर जा रही थी। और सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना, वो मोहब्बत से कहने लगा और उसे देखने में मसरूफ रहा। इसका सर हिला दिया था। मनाहिल का सर उससे पहले और झुकता। माइज ने इसका सर अपने कंधे पर रखा, इसके गिर्द हारस बना लिया। मनाहिल की आंख खुल गई। छोड़े? मनाहिल उसे देखते हुए कहते साथ अपना आप छुड़वाने लगी, क्योंकि जहाज में मौजूद थे और उसे शर्म आ रही थी। चुप करके सो जाओ मनाहिल, उसे सद लहजे में कहने लगा। मनाहिल मासूम शक्ल बना गई। माइज नजरें सामने की तरफ कर गया। ना मनाहिल फोन उठा रहा है, ना माइज खैरियत हो। सब ज़ाहिर फिक्रमंदी से कहने लगा। अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ माइज बच्चे के घर चलते हैं, इसी बहाने मिल भी लेंगे मनाहिल से। अनमोल ज़ाहिर से कहने लगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम तैयार हो? तुम शाल लेकर आओ, वो उसे कहते साथ गाड़ी की चाबी थापता बाहर की जाने बड़ा। अनमोल भी शाल पहनकर फ्लैट लॉक करके नीचे की तरफ बढ़ गई। वो लोग माइज के घर पहुंचे। ज़ाहिर और अनमोल गाड़ी से उतरे। वो
अंदर जाने लगे, गार्ड ने रास्ता रोका। आप लोग कौन? वो पूछने लगा। ज़ाहिर अनमोल उसे देखने लगे। हम माए से मिलने आए हैं, ज़ाहिर ने उसे बताया। सर घर नहीं है, सर कुछ दिनों के लिए वाइफ के साथ अमेरिका गए हैं, गार्ड से बताने लगा। अमेरिका? ज़ाहिर सोच में पड़ गया। जी, जब वो हो तो आइएगा, गार्ड से कहने लगा, जिस पर ज़ाहिर अनमोल खामोशी से चले दिए। वो लोग घर पहुंच चुके थे। मनाहिल ने जैसे ही कदम रखा, इसके 14 तबक रोशन हो गए। ये घर इस कदर कमाल का था ना कि इसकी नजरें जम सी गई थी। कितना प्यारा है ना, इसके मुंह से बेख्तियार निकला। माइज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मेरे बचपन यही गुजरा है, माइज उसे बताने लगा, जिस पर मनाहिल ने उसे देखा। ये बचपन से ही ऐसा है? वो इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। नहीं, 8 साल से चेंज करवाया था डैड जब आए थे मिलने एक दफ़ा हमसे, तब। वो उसे बताने लगा, जिस पर मनाहिल ने उसे देखा। अच्छा, वो बस यही बोल सकी। तुम्हारा बचपन कहाँ गुजरा है? माज इससे पूछने लगा। मलेशिया में, उसी फ्लैट में। वो उसे देखकर बताने लगी, जिस पर वो कुछ नहीं बोला। वो थकी हुई थी इसलिए सो गई थी और वो बालकनी में खड़ा सिरकट पीने में मसरूफ था। माइज कुछ देर बाद इसकी आंख खुली। उसे माइज कहीं नहीं दिखा तो वो उसे पुकारने लगी। माइज कहाँ है आप? वो बेड से उठते हुए उसे पुकारने लगी। यस मनी। वो मोहब्बत से इसका नाम पुकारते हुए पूछने लगा। वो उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स हुई। आप कहाँ थे? वो उसे देखते हुए मासूमियत से पूछने लगी। यही आपके पास था, वो मोहब्बत से कहते साथ इसके करीब हुआ। मनाहिल की हार्ट बीट मिस हुई थी। माइज ने इसके चेहरे पर नजरें की। वो देखने में इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। माइज ने इसके माथे पर लब रख दिए। वो बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी, तभी वो शाल और जैकेट लिए इसके पास आया और जैकेट उसको पहनाई और शाल उस पर डाली। ख्याल रखो, आप अब ठंड लग जाएगी, माइज उसे देखते हुए कहने लगा। मनाहिल ने उसे देखा। आप है ना? वो नजरें झुकाए मोहब्बत से कहते साथ सामने देखने लगी। वो मुस्कुराया। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, राइट? वो उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर मनाहिल ने इसकी तरफ देखकर साबत में सर हिलाया। मगर तुम कभी करीब नहीं आने दिया। हम दोनों की शादी को हफ्ता हो गया, एक किस्त तो बनती है मेरी। वो इसको देखते हुए बड़ी बेबाकी से ये लफ्ज़ अदा कर गया। मनाहिल इसकी बात सुनकर नजरें झुका गई। मैं हक रखता हूँ ना किस करने का? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर वो हल्का सा सर साबत में हिला गई। माज इसका चेहरा अपने हाथों की मदद से ऊपर करके इसके माथे पर लब रख गया। इसके बाद वो इसकी नाक पर लब रख गया। मनाहिल का जिस्म कांप रहा था, इसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। वो आंखें बंद कर गई और माज इसमें मगन इसके होठों पर अपने होठ रख गया। उसे झटका लगा। वो पीछे हुई। माज उसे देखने लगा। वो शर्मिंदगी से नजर झुका गई। अंदर चलते हैं, वो उसे कुछ कहे बगैर इसका हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ रहा था और कमरे में आते ही माइज उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटा गया। सारी लैंप ऑफ कर दिया और इसके होठों पर दोबारा से अपने होठ पूरी शिद्दत से रख दिए और मनाहिल अपने हाथ मजबूती से उसकी शर्ट पर रखे आंखें मीच गई। दिल तेज धड़क रहा था। सुबह माइज की आंख खुली तो उसे अपने सीने पर सर रखे दुनिया से बेखबर सोते हुए पाया। माइज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि इतना तुम अपने बाप को भूल जाओगी, सिर्फ मेरी मन कर रह जाओगी और फिर तुम्हें पता लगेगा ज़ाहिर खासमी तकलीफ किसे कहते हैं। वो दिल में कहते साथ चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाए बोला और मनाहिल की परेशानी पर लब रखे। उसका सर आराम से तकिए पर रखा, चेहरे पर रखे मोहब्बत से उससे देखते हुए उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कैसे वो हमसे मिले बगैर जा सकती है? अनमोल उदासी से बोली। मेरी माँ से बात होती रही, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। कोई काम पड़ गया होगा उसे, इसने सोचा होगा उसे इसी बहाने मनाहिल को भी साथ ले जाता हूँ। ज़ाहिर सोचते हुए कहने लगा। ज़ाहिर, आप कैसे एक अनजान शख्स पर इतना यकीन कर सकते हैं? अनमोल उसे देखते हुए कहने लगी। ज़ाहिर ने उसे देखा, दिल उस पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा है। ज़ाहिर उसे बताने लगा तो वो उसे देखने लग गई। अल्लाह करे मेरी बच्ची जहाँ भी हो ठीक हो, अनमोल दुआ करते हुए बोली, जिस पर ज़ाहिर ने भी आमीन कहा। तुम परेशान ना हो, मैं कहता हूँ माइज को फ़ोन थोड़ी देर तक। वो अनमोल को तसल्ली देते हुए कहते साथ रूम की तरफ बढ़ा। अनमोल भी इसके पीछे आई। वो उठी तो कमरे में खुद को अकेले पाया। वो उठकर बैठकर और के साथ टेक लगाकर बैठी। इसकी थोड़ी पर
वो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो फ्रेश होकर आई तो माइज वहां मौजूद था। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। गुड मॉर्निंग मनी। वो मोहब्बत से इसका नाम पुकारने लगा। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ आकर बैठी। करो ब्रेकफास्ट। वो उसे बैठा देखकर कहने लगा, जिस पर उसने ब्रेड उठाई और मक्खन लगाने लगी और माइज इसकी चाय बनाने लग गया। उसने नाश्ता किया। तुम्हारे लिए कुछ है? माइज उसे देखते हुए कहने लगा। क्या? मनाहिल सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछने लगी। माइज चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसकी तरफ देखने लगा। तुम 2 मिनट वेट करो, मैं ये डिशेस रख कर फिर आकर बताता हूँ। वो उसे कहते साथ डिश थामता चला गया और मनाहल उसे जाता देखने लगी। 2 मिनट बाद वो कमरे में मौजूद था और इसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ मांगना चाहा, जो वो फौरन थाम गई। वो उसे उठाकर ड्रेसिंग के सामने लाया और जेब से एक बॉक्स निकालकर इसमें से पेंडेंट निकाला, जिस पर MM सफेद नेगों से लिखा हुआ था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बहुत प्यारा है। वो शीशे से उसे देखते हुए कहने लगी। माइज ने उसके बाल आगे किया और उसे पेंडेंट पहनाया। ये पेंडेंट तुम संभाल कर रखना, हमारे प्यार की पहली निशानी समझकर। वो उसे पहनाते साथ उसकी बैक पर लब रखते हुए मोहब्बत से कहने लगा। मनाहल आंखें बंद की इसके होठों का लम्स महसूस करने लगी। उसे संभाल कर रखोगी ना? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर वो साबत में सर हिला गई। माइज ने इसके माथे को अब फिर अपने होठों का लम्स महसूस करवाया। अब मुझे ज़रूरी काम है तो मुझे जाना है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो उसे कहते साथ चला गया और मनाहल शीशे के सामने खड़ी इस पेंडेंट को देखकर इस पर लब रख गई। वो अपने से भी ज्यादा इसकी हिफाजत करूंगी। वो मुस्कुराते हुए मोहब्बत से कहते साथ बेड पर बैठ गई। सुनना पर क्या करूं? माइस का बंदा पूछने लगा। तुम खत्म कर दो। माइस सद निगाहों के साथ मुख्तसर जवाब देते हुए आगे बढ़ा। वो भी इसके पीछे आया। माइस ने उस बंदे को कॉलर से पकड़कर उसे खड़ा किया। जान प्यारी है या नहीं? माइस ने उसे सीधी बात की, जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। माइस ने कुछ कहे इसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और वो शख्स कांप कर रह गया। जवाब दे देना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर था। वो उसे कहते साथ अपने ग्लव्स ठीक करता चाकू थाम कर आगे बढ़ने लगा। सुनार पर तभी अपने साथी की आवाज सुनकर वो मुड़ा और उसे एक जगह आने का इशारा कर रहा था। ये भी साथ था, इसका साथी बताने लगा, जिस पर वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ा और इसकी गर्दन पर पीछे से चाकू फेर दिया। वो भी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। हो गया काम? माइज उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर इसका साथी साबत में सर हिला गया और दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। माइज सुबह का गया हुआ था और अब रात होने को थी और इसका कुछ पता नहीं था। वो परेशान सी कमरे में बैठी माइज का इंतजार कर रही थी, मगर वो आने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दरवाजा खुला और वो कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मनाहिल मुंह बना गई। कहाँ थे आप? मनाहिल अफसुदगी से उससे पूछने लगी। माइज ने उसकी तरफ देखा। बताकर तो गया था, जरूरी काम है। माइज उसे बताने लगा, जिस पर वो उसे देखने लगी। इतनी देर से बस वही काम कर रहे थे? वो मासूमियत से कहने लगी, जिस पर वो साबत में सर हिला गया। मेरी फिक्र है भी या नहीं? मैं अकेली थी, अगर मेरे साथ कुछ मनाहिल अभी बोल रही थी। माइज ने उसके होठों पर हाथ रखा। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए गार्ड्स मौजूद थे नीचे। कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हें, मैं कुछ होने ही नहीं देता। माइज उस पर नजरें जमाए मोहब्बत से कहते साथ उसके और अपने बीच फासला खत्म करने लगा। उससे पहले वो उसके चेहरे पर झुकता मनाहिल मुंह दूसरी तरफ कर गई और दोबारा पीछे हुई। माइज उसे देखने लग गया। उठाया उसने फोन। अनमोल फिक्रमंदी से पूछने लगी। नहीं, बिजी होगा, तुम फिक्र मत करो। जाहिर मुस्कुराते हुए कहने लगा। अनमोल उसे देखने लग गई। मेरी समझ से बाहर है कि आपको इतना यकीन क्यों है उस पर? मैंने जब कहा कि अच्छे से छानबीन कर लें तो इसकी तो नहीं सुनी एक भी। अनमोल गुस्से से जाहिर से कहने लगी। अनमोल तुम सब्र रखो, वो बिजी होकर लाजमी फ्री होकर लाजमी करेगा मुझे कॉल, तो मुझे पता लग जाएगा। जाहिर उससे देखते हुए बताने लगा, जिस पर अनमोल खामोश हो गई।
बेटा आप के घर गए थे, मालूम हुआ आप अमेरिका हो, मनाहिल भी साथ है। जाहिर उससे पूछने लगा, जी बस मनाहिल ने की कहा कहीं घूमने चल रहे हैं तो इसलिए। वो जाहिर को बहुत सफाई से झूठ बोलने लगा। अच्छा मनाहिल से बात हो सकती है? जाहिर माइस से पूछने लगा, असल में पूरा दिन घूमे हैं हम, तो बहुत थक गई थी, सोई हुई है, अगर बात करनी लाजमी है तो उठा देता हूँ मैं। माइस जाहिर से कहने लगा, अरे नहीं नहीं सोने दो, मैं कल कर लूँगा फ़ोन। जाहिर ने कहते साथ फ़ोन रख दिया। तुम अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के लिए भी तड़प जाओगे। जाहिर, कासमी तुम्हें पता लगेगा तकलीफ होती क्या है, तुमने मेरे बाप को तकलीफ दी है। वो जाहिर खंद लहजे में कहते साथ कमरे की तरफ बढ़ा। तुमने खाना खा लिया? वो कमरे में आता हुआ पूछने लगा। जी। मनाहिल मुख्तसर सा जवाब देने लगी। सुने, मनाहिल उसे पुकारने लगी। बाहर इसकी तरफ देखा और डैड की कॉल नहीं आई, क्यों? मेरा बात करने का दिल था, वो उसे देखते हुए कहने लगी। और ये बात सुनकर माइस को थोड़ा गुस्सा आया, मगर वो काबू करते हुए चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाए उसे देखने लगा। मेरी बात हुई थी, मैंने कहा बनी से बात करवाऊं तो तुम्हारे डैड ने मना कर दिया कि वो बिजी है, कल कर लेंगे। माइस उसे बताने लगा। मनाहिल उसे देखने लगी। क्या सच में डैड ने यही कहा? मनाहिल को वाकई यकीन नहीं आया, वो तो कभी भी नहीं उसे मसरूफ कहा करता था, इसकी बात फौरन मान जाया करता था। माइस मकसद सर हिला गया और वो खामोश हो गई। माइस दूसरे रूम में खड़ा अपना चाकू और 2 पिस्तौल बेड पर रखकर फोन सुन रहा था। मनाहिल उसे ढूंढते हुए इस कमरे की तरफ आ गई। उसने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा तो माइस के हाथ में चाकू और बेड पर पिस्तौल पड़ी देखकर उसे डर लगने लगा। उसका दिल घबराने लगा। माइस किसी दूसरी की मौजूदगी पाकर मुड़कर देखने लगा। मनाहिल को यहाँ देखकर हैरत का धचका लगा। मनी, तुम यहाँ, तुम्हें मैंने मना किया था रूम से निकलने के लिए। वो उसे गुस्से से देखते हुए कहने लगा। वो घबराते हुए उसे देखने लगी। रूम में जाओ, मैं आ रहा हूँ, वो उसे कहने लगा, जिस पर वो डरते और घबराते हुए रूम में चली गई। वो कमरे में खौफजदा तासर लिए बैठी थी, तभी वो कमरे में आया और उसके पास आया। जो पूछना है पूछो। माइस जानता था इस वक्त इसके जहन में बहुत से सवाल होंगे, इसलिए उसे कहने लगा। मनाहिल उसे देखने लगी। वो चाकू क्यों था आपके पास? मनाहिल घबराते हुए उससे पूछने लगी। माइस ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए और उसे देखने लगा। क्योंकि मेरा काम वही है, क्रिमिनल्स को इनके अंजाम तक पहुंचाना ही मेरा काम है। वो मनाहिल को देखते हुए उसके चेहरे पर हाथ रख के जवाब देने लगा, जिस पर जाकर मनाहिल को थोड़ी तसल्ली हुई। मैं तो डर ही गई थी, वो कहते साथ लेट गई। माइस उसे वैसे ही एकटक देखने लग गया और उसके होठों पर गौर करने लगा। मनाहिल इसकी इस तरह देखने पर पलकें झुका गई। माइस ने अपने होठ मनाहिल के होठों पर रख दिए। सुबह मनाहिल की आंख खुली तो सारे साथ दुनिया से बेखबर नजर सोते हुए माइस पर गई, जो सोते हुए बेहद मासूम लग रहा था। इतने हैं नहीं जितने सोते हुए लग रहे हैं। मनाहिल नजरें झुकाए उसे मुस्कुराते हुए बोली और इसके माथे पर लब रखकर उठ गई। इसके जाते ही माइस ने आंखें खोली। माइस मलिक, तुमने एक और काम भी कर दिखाया। आखिर मनाहिल को खुद से मोहब्बत करवा ही दी, वो मुस्कुराते हुए कहते साथ उठा। वो फ्रेश होकर उसे जागता हुआ पाया। उसे कुछ कहे बगैर ड्रेसिंग के सामने आकर बाल सुलझाने में मसरूफ हो गई। मैंने ख्वाब में देखा किसी ने मेरे माथे पर लब रखे हैं, वो शौकिया लहजे में कहते साथ मनाहिल के करीब हुआ। मनाहिल की हार्ट बीट मिस हुई, वो नजरें झुका गई और हाथ मसलने लग गई। वो भी मुस्कुराया। बाहर घूमने चले, वो मनाहिल से पूछने लगा। मनाहिल फौरन साबत में सर हिला गई। ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लें फिर चलते हैं, वो उसे कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गया और मनाहिल सर पर हिजाब करने लगी। वो दोनों घूम रहे थे, साथों में हाथ डाले, कदम से कदम मिलाए वो दोनों चल रहे थे। जूस पियोगी? सामने जूस वाली शॉप देखकर माहिल उससे पूछने लगा तो मनाहिल साबत में सर हिला गई और वो दुकान की तरफ बढ़ गया। मनाहिल खड़ी थी, तभी एक लड़का इसकी तरफ बढ़ा। मनाहिल घबरा कर पीछे को हुई है।
है ब्यूटीफुल। वो शख्स उसे घटिया नजरों से देखते हुए करीब आने लगा। शट अप, मनाहिर उसे आंखें दिखाते हुए बोली। तभी माइल्स जूझ लिए मनाहिर की तरफ आया। सामने खड़े शख्स को देख इसको गुस्सा, इंतहा का गुस्सा आया था। वो जूस का गिलास फेंकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उससे पहले वो शख्स मनाहिर को छूता, माइल्स ने चाकू निकाल कर उसके हाथ पर दे मारा। मनाहिर खौफ से पीछे हो गई, जबकि माइल्स उसे संभलने का मौका दिए बगैर थप्पड़ों की बारिश कर गया और मुक्के मारने लग गया। वो शख्स इनबैलेंस होकर जमीन पर गिर गया। माइल्स ने इसके पेट पर टांग मारी। वो शख्स दर्द से कढ़ा गया। मेरी बीवी को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचना ना, माइल्स इंग्लिश में उसे कहते साथ इसके पेट से टांग हटा गया और वो शख्स फौरन भाग गया। आर यू ओके? माइल्स मनाहिर को देखते हुए पूछने लगा, जिस पर वो साबत में सर हिला गई। चलो चले। वो उसके गिर्द हारस बनाते हुए उसे घर की तरफ ले जाने लगा। मनाहिर को देखे उससे बात किए इतना वक्त हो गया है, प्लीज प्लीज किसी तरह करके मेरी बेटी से बात करवाए, अनमोल उदासी से जाहिर को देखते हुए कहने लगी। 1-2 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे मलेशिया, हम मिलने जाएंगे इनसे, ठीक है? मेरी माँ से बात हो गई है, तुम बेफिक्र हो, जाहिर से तसल्ली देते हुए कहने लगा। अनमोल बेड पर लेट गई। तो तुझे पहले ही कहा था इतनी जल्दी ना कर, मनाहिर की शादी में छानबीन तो करने देता। तेहरान उसे देखते हुए कहने लगा, कुछ गलत नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग परेशान ना हो, ठीक है? जाहिद सद लहजा अख्तियार किए बोला, जिस पर तेहरान लब भेज गया और जाहिर अनमोल के पास चला गया। वो इस वाक़ये से थोड़ा सहमी हुई थी। खून वगैरह देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। हम वापस कब जाएंगे? माइस को कमरे में आता देख फौरन पूछने लगी। 1-2 दिन में, माइस जवाब देते साथ उसके पास आया। मनाहिर उसके सीने से लग गई। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, जब तक मैं साथ हूँ तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। वो उसे सीने से लगाया मोहब्बत से कहने लगा। मनाहिर रोने लग गई। मनी, रो तो नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारा रोना, वो उसे प्यार से कहते साथ आंसू साफ करने लगा। मनाहिर नीम आंखों से उसे देखने लग गई। माइज ने इसके माथे पर लब रखे और उसे लिटा दिया। मनाहिर अब सो चुकी थी और वो बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी फोन बजा। असद कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगाया। बोलो। वो फोन कान के साथ लगाए स्मार्ट लहजे में पूछने लगा, यार तू क्या करना चाह रहा है? असद फिक्रमंदी से पूछने लगा। हम मलेशिया में इस मुतालिक बात करेंगे, माइज ने कहते साथ फोन कट कर दिया। एहसान फरमोश, एक तो मोहब्बत से मिलवाया, ऊपर से मुझे भी आवर होकर दिखा रहा है। सब तप कर कहते साथ फोन रखकर गुस्से से बालकनी की तरफ बढ़ गया। तो दोनों आज वापस जा रहे थे। मनाहिर खुश थी और दोनों इस वक्त फ्लैट में मौजूद थे। माइज और इन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। हाँ, पहुंच रहे हैं, माइज कहते साथ फोन रख गया और नजरें मनाहिर पर गई जो उसे देख रही थी। कुछ कहना है? माइज उसे देखते हुए पूछने लगा। नहीं, वो घबराते हुए जवाब देने लगी। पक्का? माइज ने उसे कहा, जिस पर वो साबत में सर हिला गई। माइज नजरें सामने कर गया और मनाहिर नजरें झुका गई। कुछ ही देर में वो लोग पहुंच चुके थे। तुम रूम में जाओ, मैं मॉम से मिलकर आता हूँ, वो मनाहिर से मुखातिब होते साथ बोला, जिस पर मनाहिर साबत में सर हिलाकर चल दी और वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया। और मुझे भी मॉम डैड से मिलना है, आए तो कहती हूँ मुझे कल ले जाए, वो कमरे में आते हुए बोली और बेड पर बैठ गई। माइज, मुझे मनाहिर उसे पुकारने लगी। इससे पहले ही माइज ने उसे टोक दिया। मनाहिर, मुझे जाना है, जरूरी है काम। माइज उसे टोकते हुए कहते साथ चला गया। मनाहिर उसे जाता देखने लगी। मैं आकर तुमसे बात करूंगा। माइज जाते जाते वापस मुड़कर उसे कहते साथ चला गया। मनाहिर खामोशी से बैठ गई। शाम के वक्त जब वो घर आया तो मनाहिर को सोया हुआ पाया। सफर से थक गई थी, शायद इसीलिए थकान उतार रही थी। माइज एक नजर उस पर नजर डालकर बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर कुछ देर बाद वापस आया और उसके करीब आकर बैठा। मनी, 7 बज गए हैं, उठ जाओ, माइज उसे जगाते हुए कहने लगा। मनाहिर की इसकी आवाज और उसकी सांसों से फौरन उठ गई। उसे इस तरह घबराकर उठता देखकर माइज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। आप कब आए? वो बालों को जूड़े की शक्ल में कैद करती इससे कुछ फासला इख्तियार करते हुए पूछने लगी। इसकी बात सुनकर माइज ने उसे देखा जब तुम गहरी नींद सो रही थी, वो उसे बताने लगा, जिस पर वो खामोशी से बेड से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। माइज उसे जाता
دیکھنے لگ گیا. مائز مجھے مام ڈیڈ سے ملنا ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کرنے لگی اور اس کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کا دماغ گھما. وہ اسے مڑ کر سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا. اس نے اس طرح غصے سے خود کو گھورتا دیکھ وہ تھوڑی ڈری تھی اور اس کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ اس کے الٹے ہاتھ کی انگلیاں اپنے الٹے ہاتھ کی انگلیوں میں گھساتا اسے زور سے دیوار سے لگائے اپنی وحشت بھری نگاہوں سے گھورنے لگا. مناہل آج اس کا ایک نیا روپ دیکھ کر ڈر گئی. پیار کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر گمبھیر آواز میں سرگوشی کرنے لگا. مناہل اپنے اوپر اس کی گرم سانسیں محسوس کر کے بے بس ہو رہی تھی. اس کی سانسیں رک سی گئی تھی. وہ بے بسی سے اپنی برون آنکھیں بند کر گئی. بولو. سامنے کھڑے شخص اب کی سرخ آنکھیں لیے اور سخت لہجہ اپنائے اسے مخاطب کرنے لگا. مناہل ہڑبڑا کر رہ گئی. وہ ثابت میں سر ہلا گئی. وہ ہلکا سا مسکرایا. یقین ہے مجھ پر؟ وہ اس کے اور قریب ہو کر جھک کر پوچھنے لگا. مناہل نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی مناہل کے اندر ڈر کی لہر دوڑ گئی. وہ اپنی وحشت بھری نگاہیں اس پر گاڑے کھڑا تھا. مناہل ثابت میں سر ہلا گئی. مائز کے چہرے پر فتحانہ مسکراہٹ آئی تھی اور مناہل اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی. تو میں جیسا کہوں نا ویسا کرو. آج کے بعد اپنے باپ کا نام بھی نہیں لینا. تمہارے سارے تعلق ختم ان سے، سمجھی؟ وہ اس سے الگ ہوتا بولا اور وہ گھبرا گئی تھی. آنکھوں میں نمی آ گئی تھی. کیوں؟ کانپتے لبوں کے ساتھ وہ اس سے پوچھنے لگی. مائز نے مڑ کر اسے دیکھا. میں نے منع کر دیا نا. آج کے بعد اپنے باپ کا نام اس زبان پر مت لانا. وہ غصے سے کہنے کے ساتھ لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ دروازہ بہت زور سے بند کیا جس کی آواز سے وہ سہم گئی تھی. وہ اس کے جانے کے بعد ویسی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وارڈروب سے سر اٹکائے رونے لگ گئی تھی. وہ شخص اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا. کبھی اتنا کیئرنگ تو کبھی اتنا جلاد بن جاتا تھا. وہ پریشان ہوئی تھی. وہ کمزور نہیں تھی لیکن غصے کی عادی نہیں تھی. ہمیشہ پیار لاڈ میں رہنے والی تھی. مجھے اتنا ہرٹ کیا ہے. کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے. کبھی بھی نہیں. برے ہیں آپ، بہت برے. اتنے برے کہ مجھے آپ کو نہیں دیکھنا. وہ روتے ہوئے مائز پر غصہ کر رہی تھی. ڈیڈ مجھے نہیں رہنا یہاں. آپ اپنی بیٹی کو کہاں اکیلا چھوڑ گئے ہیں؟ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے میرے لیکن اب نہیں ہے اور میں مل بھی نہیں سکتی ہوں. وہ اداسی سے کہنے لگی اور منہ گھٹنوں میں دے کر سسکیاں لینے لگی. جب بھی دل تکلیف میں ہو اور خود کو اکیلا محسوس کرو تو یاد رکھنا تم اکیلی نہیں. تمہارا خدا ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. انمول کی بات اس کے ذہن میں آئی. وہ اپنے آنسو پوچھتی اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھی. اللہ تعالیٰ میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا. پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کچھ کیوں؟ جب اس انسان کا دل چاہتا ہے مجھ سے پیار سے رہتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے مجھ پر چلاتا ہے. یہ سب کیوں میرے ساتھ؟ میں بہت پریشان ہوں. کس طرح مجھے میرے ماں باپ تک پہنچا دو. ان کے سینے سے لگ کر تھوڑی دیر رونا چاہتی ہوں. وہ روتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مسلسل خدا سے گفتگو کرنے میں مصروف رہی اور تب تک اس کی پلکیں بھیگی رہی. وہ اپنا سر سجدے میں دے گئی اور کچھ دیر وہ یوں ہی سجدے میں بیٹھی رہی. اب وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی. اپنا سارا درد اپنے خدا سے جو کہہ کر آئی تھی